So the homework was from OP Malhotra exercise 19B, where you are asked to do all the sums of this exercise. But make sure that यहाँ से कुछ sums नहीं होगा, जैसे कि sum number वो मैं बोलना भूल गया था, that is sum number 14, 15 and question number 20, 21. कौन से कितने सम? 4 सम, 14, 15, 20, 21. तो ये 4 सम छोड़ के बाकी जो भी डाउट है वो हो जाएगा भी, क्योंकि ये 4 सम जो है इसका कंसेप्ट अभी बताया नहीं गया है. इज दिस क्लियर एवरीवन? इसका कंसेप्ट अभी बताया नहीं गया है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा. बट इसके अलावा बाकी सब सम्स हो जाना चाहिए. लेकिन हाँ, मतलब सब मतलब होने वाला है, मतलब तुम लोग कर पाएंगे. तो अभी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का जो भी डाउट है इन सारे सम्स में, यू जस्ट आस्क योर डाउट्स फर्स्ट. मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. यस, टेल मी वन बाय वन. So everyone note down that by mistake I gave first exercise, but should have given 19B. No problem. Today I'll give you 19B, and you can clear your doubts next day. And 19A is a different topic, which is differentiation by first principle. So let's start 19C today. So the content of 19C is product rule and question rule. Example, suppose we have two functions in product form. So we will use this formula to differentiate. Okay. Let us take, for example, the first question, which is 2x square into e to the power x. Now, before starting this, let me make this point clear that whenever we are differentiating a function which is a product of two things, make sure that when we say two things, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए बताओ आपको? फंक्शन ऑफ x, मतलब दोनों वेरिएबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि दो चीज में, जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी दो चीज का प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे हम लोग ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे. I'll just come to this topic. Let me first explain you the use of this formula first. फिर मैं यहाँ पे आता हूँ क्यों नहीं अप्लाई करेंगे. Listen. So first of all, you have to write down differentiating y with respect to x. So we have ddx of y. Now y is an expression which is a product of 2x square and e to the power x. ddx of y can be written as dy by dx. And here we find that, you know that suppose you have, last day we have seen this, that if you have constant and variable in product form, you can keep that constant outside and differentiate the variable, differentiate the function. So you can keep this 2 outside and differentiate the remaining thing which is in terms of x. तो अगर हम 2 को बाहर रख दें जो कि कांस्टेंट है, तो क्या बचा? x स्क्वायर into e to the power x बचा. ठीक है. Now x स्क्वायर into e to the power x भी दो चीज का प्रोडक्ट है, तो यहां हम क्या करेंगे? पहला वाले को u ले लेंगे और दूसरा को हम लोग v ले लेंगे. पहला को u, दूसरा को v, और फिर हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे पहले. ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. So if I use this formula, everyone note down, we have u that is x square into ddx of v, which is e to the power x, plus v that is e to the power x into ddx of u, which is x square. All right, everyone, and make sure that you use this bracket to enclose it. मतलब ये इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रखना, ये कभी मत भूलना. Clear, everyone? Use bracket to to enclose this expression. Okay, इस एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट से मतलब enclose कर देना. Because इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है. अगर हम ब्रैकेट ना दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है. इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 2 है वो सिर्फ पहला वाला टर्म के साथ ही प्रोडक्ट फॉर्म है, बट ये गलत हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे.
ओके, तो अब क्या है, टू पूरा एक्सप्रेशन के साथ मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर जो कि बाहर है। Check in your copy the formula which I have given last year. What is ddx of e to the power x? Check your copy. ddx of e to the power x is e to the power x itself. Check कर लेना। Plus ये बाहर है तो बाहर ही रहने दो। What is ddx of x square? Check once. Formula number one. ddx of x square is n, that is 2, x to the power 2 minus 1, that is 1. So our differentiation is over. The only thing which I have to do is कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहला चीज मुझे दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। फिर e टू द पावर x कॉमन दिख रहा है, वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा। अगर आप e टू द पावर x और x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा। सो दिस इज dy by dx। ना वाई, क्यों मैंने बोला कि यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई नहीं करेंगे? क्या अप्लाई करने से गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। देखो एक बार मैं अप्लाई करके बताता हूँ। लेट अस टेक द फर्स्ट 2 as u and this as v. Let us apply the formula which is u into ddx of v plus v into ddx of u. ddx of x square is n x to the power n minus 1. What is ddx of constant? बताओ तो ddx of 2 क्या होगा? देखो तो अपने कॉपी में सिर्फ अगर 0 होता है तो क्या बचा? बताओ तो 4x ही बचा है। देखो तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई नहीं करके अगर हम 2 कांस्टेंट है बाहर रख करके और अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो भी आंसर यही आता, यही आता आंसर। क्योंकि आखिर में अगर हम यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ddx of 2 क्या हो रहा है? 0, और 0 into x स्क्वायर क्या हो जाता है? 0। तो क्या बच रहा है? देखो तो इतना ही तो पार्ट बच रहा है ना। So that's why if you are differentiating an expression which is a product of constant and a variable, keep that constant outside. Product of constant and variable, keep that constant outside instead of applying UV rule. Because if you apply UV rule, the result you get is same. The result which you obtain is same if you use the property. So ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, ये यूवी रूल अप्लाई नहीं करेंगे अगर दो चीज का प्रोडक्ट है और दोनों अगर वेरिएबल है। तो यहाँ सॉरी, दो चीज का प्रोडक्ट है जिसमें एक अगर मान लो कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। दोनों वेरिएबल है तब जाके हम लोग इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 को बाहर रख दिया और जिस चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों चीज क्या है? वेरिएबल है। देखो ये x स्क्वायर भी वेरिएबल है, e टू द पावर x है तो ये भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग यूवी रूल अप्लाई करेंगे। Okay, everyone. So avoid applying UV rule if you are product of constant and a variable. Keep constant outside and differentiate the variable. Don't apply UV rule because इसमें process step ज़्यादा use होगा, इसीलिए हम इसको avoid करेंगे। But गलत ये नहीं है। ना मैं दूसरा सम दे रहा हूँ, एक बार सबको ट्राई करो। y equal to 5 x to the power 5 into sin x. Try use this sum. See everyone here. So I'm not writing differentiating y with respect to x, those things, okay? So we have dy by dx. Here you find that 5 is a constant, x to the power 5 is a variable, sin x is also variable. So let us keep 5 outside and differentiate x to the power 5 into sin x, which is the product of two things. दोनों को वेरिएबल हम लोग, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो एक को हम u मान लेंगे, दूसरा को v, and we will apply uv rule here. So the formula is u into ddx of v plus v into ddx of u. ddx of sin x is how much? Cos x. ddx of x to the power 5 is 5x to the power 4. I think ddx of sin x is cos x. You can check in your copy. Check your copy once, everyone. You have this formula in your copy. I think it is 11 number 8 या 9 number number. ठीक है? चेक कर लो एक बार ये, ठीक है ना? ddx of sin x cos x है, ओके? तो ये एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना। इसमें से हम लोग ज्यादा क्या कर पाएंगे? x to the power 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x cos x plus 5 sin x. Is this clear, everyone? Now next.
Now suppose you have, let's take for example, you have x to the power 5 into sin x into e to the power x. अभी तक हमने देखा तीन चीज का प्रोडक्ट जहां पे एक कांस्टेंट था और दो वेरिएबल था, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखते रहते। अब इस टाइप का सम में क्या होगा देखना एक बार, तीनों का तीनों वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। If you have product of three things and all the three things are variable, see the formula. इस फॉर्मूला को याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसमें क्या करना है, u को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार v को डिफरेंशिएट कर दो और एक बार w को। ओके, अब देखो u को डिफरेंशिएट किया तो बाकी दो को बाहर रखो, v को डिफरेंशिएट किया तो बाकी दो को बाहर रखो, w को डिफरेंशिएट किया uv को बाहर रखो, सब में बीच में प्लस दे देना। समझ गए? फॉर्मूला याद रखने का बहुत इजी तरीका है। ओके, सो यहां पे भी हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, so we have ddx of y, we have x to the power 5 into sin x into e to the power x। यहाँ पे तीन चीज का प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को u, सेकंड वाले को v, थर्ड वाले को w ले लेते हैं। और ऐसा तो जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर में ही हम लोग को लिखना पड़ेगा, पहले वाले को u, सेकंड वाले को v, थर्ड वाले को w, ऐसे हमको कंसीडर करना पड़ेगा। इस ऑर्डर में इज नॉट कंपलसरी, मतलब हम किसी एक को u, किसी को भी v और किसी भी तीसरे चीज को हम लोग w ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, कम्यूटेटिव, मतलब 2 into 3 का मतलब 3 into 2 का मतलब सेम होता है, एंड आल्सो एसोसिएटिव, दैट इज 2 into 3 into 4 है, तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें, या पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, सबका रिजल्ट सेम ही आना है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन चीज का प्रोडक्ट फॉर्म में अगर है तो हम किसी को u और किसी को v ले सकते हैं। तीन चीज है तो किसी को u, किसी को v, किसी को भी w ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। अब लेट्स नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूला याद रखने का बहुत सिंपल तरीका बताया, ठीक है, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना है कि तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है, ये तरीका है याद रखने का। ओके, जस्ट नोट डाउन, हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स ऑल। एक बार x to the power 5 को, एक बार sin x को, एक बार e to the power x को। इसको डिफरेंशिएट किया तो दोनों को बाहर रखना, प्रोडक्ट को, इसको डिफरेंशिएट किया तो इन दोनों को बाहर रखना, इसको डिफरेंशिएट किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट को बाहर रखना, सीधा। ओके, ये बाहर है तो डिफरेंशिएट हम लोग किसको करेंगे, डिफरेंशिएट x to the power 5 को, which is 5x to the power 4, ddx of sin x is cos x, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power, and now what you can do is you can take common, जो कॉमन देखे कॉमन ले, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद I'll give you one sum, you try that sum, everyone। Everyone try this sum. Y is equal to x square plus 1 into x cube plus 2 to x to the power 4 plus 3. Find out dy by dx. Do first. So everyone look here, I am solving, okay? So differentiating y with respect to x. So we have ddx of y, and we have product of three things, okay? X square plus 1, x cube plus 2, x to the power 4 plus 3. ddx of y becomes dy by dx. So as it is a product of three things, so let us consider one as u,
The other is v, and the third thing is w. So the formula is d dx of u, where I'll be keeping w and v outside. Okay. Plus d dx of v, that is x cube plus 2. I'll be keeping u and w outside. Plus d dx of w. I'll keep x square plus 1. X cube plus 2 outside. Now d dx of, what is d dx of x square plus 1? Anyone who can tell me what is d dx of x square plus 1 without telling? 2x 2x क्यों? because हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसमें दो टर्म है। तो याद होगा लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसमें क्या करते हैं, हम लोग सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x plus 0 is 2x। सेम वे यहाँ पे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, बिकॉज 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट होगा, कॉमन लेते हैं तीनों में x कॉमन है तो बच जाएगा 2 टाइम्स x क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 4x square into x square plus 1 x cube plus 2. So this is the final answer. The maximum thing which you can do is you can multiply and then जो बचेगा that, I mean you can leave an answer in here also, you need to multiply. Okay. Now I'll show you the next topic of today's class, that is u by v rule. अगर मान लो दो चीज डिवीजन फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का। ओके, तो पहले एक बार ये कॉपी कर लो। Now suppose you have u by v form. Okay. Now you know that division is not commutative. What is the meaning of this? 2 by 3 is not same as 3 by 2. So when we have two expressions in division form, you have to take numerator one is u and the denominator one is v. You have to apply this formula. Formula is v ddx of u minus u ddx of v by v square. This is the formula. So let us just see one sum and we will apply this formula here. Okay, let's take x square plus 1 by x square minus 1. ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालने वाले हैं। So we have ddx of y. Now y is an expression where you find that numerator भी function of x है और denominator भी function of x है। अगर ऐसा होता सपोज ddx of x square plus 1 by 2 होता सपोज, तो यहाँ पे न्यूमरेटर फंक्शन ऑफ x है बट डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम u by v रूल अप्लाई करते हैं या कुछ और सिंपल चीज है, बताओ तो, एनीवन हु कैन हेल्प मी। ये सर इंटू 1 by 2 करके क्या करते हैं, इंटू 1 by 2 करके कांस्टेंट ले लेते हैं ddx of। वेरी गुड, हम लोग हाफ को बाहर रख देते हैं और नॉर्मल हम x स्क्वायर प्लस 1 को एकदम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। दैट्स ऑल, बाय टू अप्लाई u by v रूल। ठीक है, अब देखो, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको न्यूमरेटर को u लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को v लेना पड़ेगा। सो अगर हम देख तो यहाँ पे हो जाएगा v, न्यूमरेटर को v, डिनोमिनेटर को v सॉरी, और न्यूमरेटर को u। तो फॉर्मूला होता है v into ddx of u minus u into ddx of v divided by v square by how much, v square. All right, x square minus 1 बाहर है। अब डिफरेंशिएशन हमको x स्क्वायर प्लस 1 का करना है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। x स्क्वायर को अलग, जिसका आंसर 2x आ जाएगा,
ये तो समझाना नहीं पड़ेगा। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 इज हाउ मच 2x। यहां पे आ जाएगा वापस से 2x। अब बस बचा क्या, सिंप्लीफिकेशन पार्ट। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x। कॉमन ले लो तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। So what is the answer? So dy by dx is, देखो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2 इंटू 2x becomes माइनस 4x। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v लेके फॉर्मूला लगा दिया, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u ये बार डी डी एक्स ऑफ v बाई v स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0। वैसे यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन लेके मैं सिंपलीफाई कर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार तुम लोग पढ़ो। So I have given you 3 questions. E to the power x minus 1 by e to the power x plus 1, x square by sin x, 2x cube by, this is x to the power 4 plus 1. Okay? So everyone, after completing this sum, try these 3 questions. Okay? So I think everyone has completed all these, 3 questions I've given. Okay, so what is the answer of question number 2? It is dy by dx equals to e to the power x plus 1 whole square there in the denominator, and in the numerator we have 2 e to the power x. Check once. Yes, sir. Yes, sir. Answer of second number question is 2x e to sin x minus x square cos x divided by sin square x. All right? Yes, sir. Okay, everyone. कोई अगर ऐसा है जिसका आंसर मैच नहीं किया जो मैं लिख रहा हूँ, प्लीज रेज योर हैंड। या नहीं समझ में मैं बता दूं एक सम, और ऐसा अगर कुछ भी है जो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, हो गया दोनों। तीसरा देखना है कुछ देखना बता। So we have dy by dx equals to 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, बाकी में u by v अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है v into ddx of u minus u ddx of v divided by v square. ddx of x cube is 3x square. ddx of x to the power 4 plus 1 is 4x to the power 3 and 1 का डिफरेंशिएशन 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। okay? तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिख रहे हैं पहले, फिर बच जाएगा यहाँ पे 3x to the power 4 प्लस 3। एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से सपोज, तो बच जाएगा यहाँ पे x to the power 4। ऑलराइट एवरीवन, और इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 minus x to the power 4। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। तो अगर देखा जाए तो 19C में ये 2 टॉपिक के ऊपर बेस्ड सम है, और एक है चेन रूल। चेन रूल वाला पार्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा है चेन रूल वाला पार्ट।
चेन रूल वाला पार्ट नेक्स्ट डे होगा, और जिस पे बेस्ड है 19B का 4 सम और 19C का भी 4 सम है। हाँ, 4 सम जो नहीं करना है, और बाकी सब हो जाएगा, और 19D भी हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो चेन रूल जब मैं बता दूंगा।